Good morning, students. Welcome to this class. Today I am with you to discuss the topic construction, the chapter construction. This is the 11th number chapter of NCERT book, and in this class, in class 10, there are basically three topics in construction. First one is division of a line segment in a given ratio internally. Second one is drawing a triangle similar to a triangle with given scale factor, similar to a given triangle with given scale factor. And the third one is construction of tangent to a circle. So basically three topics hai. We have to take three classes, and in this class we have to discuss the first one. Okay, so come to this one, and before drawing that, you should have some basics knowledge of construction, and those things you have come across in your class 6, 7, 8, 9. Okay, and those will be helpful to draw here. The first thing which you have to revise, that first one is construction of line segment. ये तुम्हारा सारे previous knowledge है, you should have that. Construction of the line segment. You should know how to draw this using ruler and compasses only, most important thing. Second thing, you should know how to copy an angle, copying of an angle without using protractor. You have to use your compass, and you should know how to copy this angle. Then the third thing, drawing of a circle. Drawing of circles. Then the fourth one is drawing parallel line. Drawing parallel line. And how can you draw two parallel line? Either you have to make the alternate angle equal, otherwise you have to make the corresponding angle equal. यहाँ पे तुम्हें alternate interior angle. इसे इक्वल करना है, अदरवाइज यू हैव टू मेक द कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल. So these are the basic things. Alternate interior angle इक्वल करना है, अदरवाइज कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करना है. एंड हाउ कैन यू मेक दैट इक्वल? बाय कॉपिंग ऑफ एन एंगल, बाय कॉपिंग दैट गिवन एंगल. सो ये चारों चीज़ें तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है. If you have forgotten any part of this, so before entering to this chapter, you should try at least one question from out of this topic. Okay. Okay, so students, here is a question related to the division of line segment into a given ratio. So question is like this: draw a line segment of length 12 centimeter and divide this in the ratio 4:2. Justify your construction. In this case, there may be any other length of line segment. Line segment का length कुछ और भी दिया जा सकता है, as well as the ratio may be differ. But the process will be same, and there are two process actually, and we will discuss both the process here. Okay, so after this construction, the most important thing is justification. Justification यहाँ पे basically 3 steps होगा तुम्हारे construction में. First तो हम construct करेंगे जो दिया जाए, जो whatever is given. Then after that you have to write the steps. क्या क्या हम किए हैं while drawing the given figure. We have to write those things step wise. Those are known as steps. And after completion of that, we have to go for justification, whether our construction is correct or not logically. You have to show that. So let's come to the answer. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हम लोगों को ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट क्या करना है?
लाइन सेगमेंट का लेंथ 12 सेंटीमीटर लेना है. सो इट्स ए गुड हैबिट टू ड्रॉ ए रे एक्चुअली फर्स्ट, एंड फ्रॉम द रे कॉट द रिक्वायर्ड लेंथ. तो फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, एक रे ड्रॉ कर लेना है, एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू कॉट द रिक्वायर्ड लेंथ. यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, सो आई एम टेकिंग 12 सेंटीमीटर. Actually I have to take more than that because that will not visible if I will take exactly 12 centimeter. However, I will take a length of required ratio. I will change that according to my ratio. This is 12 centimeter for me, and don't forget to write it 12 centimeter है, and you have to give the name. Name is not given here. अगर नेम यहाँ पे गिवन होता तो हम अकॉर्डिंग टू दैट लेना पड़ता हम लोग को. नाउ द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ए बी. यू कैन राइट हियर 12 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड आफ्टर दैट मीन्स दिस कंस्ट्रक्शन विल बी द फर्स्ट स्टेप. आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल. वी हैव टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम ए और स्टार्टिंग फ्रॉम बी. Either above or below, there is no restriction, but most of the time we have to draw, we should draw here. ऐसे हम draw करेंगे. Making an acute angle, so no need to use compass. देखो right angle ऐसे straight होगा, obtuse angle ऐसे होगा, तो acute angle हम ऐसे ले सकते हैं. If you want, you can take 60 degree, 30 degree also. I am just not using any proper degree, but definitely this will be acute. So fine, let's give the name AX. Okay, AX is the ray which is drawn from A, making an acute angle with the line segment AB. So ratio, next देखो ratio क्या है, 4:2 है. तो हमें यहाँ पे दोनों रेशियो को ऐड करना है, 4 + 2 6. तो in this ray we have to take 6 equal arc. 6 इक्वल आर्क मीन्स हम लोग को 6 पॉइंट प्लॉट करना है, सॉस दैट दे विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पे मैं छोटा थोड़ा लेना पड़ेगा मुझे बिकॉज 6 है, तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, this is the fifth one. Still I am not able to cover, but don't worry, हम लोग उसे थोड़ा इरेज कर देंगे और आगे इसे एक्सटेंड करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द आर्क. हमें वो आर्क को डिस्टर्ब नहीं करना है. यहाँ पे 5th वाला था, एंड यू कैन सी आई हैव नॉट डिस्टर्ब दिस वन. सेम है, तो यहाँ पे 6 वाला आ गया. इट्स बेटर टू गिव नेम. सो यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ था, दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6. दिस इज X इन द रेशियो. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन द रेशियो. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप्स में हम क्या किए, वी हैव टेकन एन आर्क एंड प्लॉटेड 6 पॉइंट along the ray AX. ठीक है. देन जॉइन द लास्ट पॉइंट A6 with B. we have to write those things in steps में हमें लिखना है. ये ऐसे जॉइन हो गया. ठीक है. देन हमें डिवाइड करना है इन द रेशियो 4:2. तो यहाँ पे A4 में हमें एक लाइन ड्रॉ करना. वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन इन सच ए वे दैट दैट लाइन विल बी पैरेलल टू A6B. ठीक है. तो कैसे करेंगे पैरेलल लाइन, कैसे ड्रॉ करेंगे? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करना पड़ता है, अदरवाइज अल्टरनेट एंगल. यहाँ पे अल्टरनेट एंगल पॉसिबल नहीं है, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करेंगे. तो इक्वल कैसे करेंगे? हम एंगल को कॉपी करके करेंगे. यही आर्क मैं ले सकती हूँ, या फिर तुम चाहो तो बड़ा आर्क भी ले सकते हो. आई एम टेकिंग दिस आर्क. देखो कैसे ड्रॉ करना है, हाउ टू कॉपी एन एंगल. दिस इज अ आर्क. एट 4th पॉइंट आई विल टेक लाइक दिस.
वी डोंट नो व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, बट हम लोग उससे ऐसे मेजर कर सकते हैं। कितना डिग्री है पता नहीं, लेकिन इतना है, ओके, दिस मच। तो उसे हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे कट करेंगे। इज इट विजिबल ना? देन हम ये दोनों पॉइंट, दिस पॉइंट एंड A4 पॉइंट को दोनों ज्वाइन करेंगे एंड एक्सटेंड करेंगे। And the intersection point of this line with AB is, let's take C. Let's take this C. So C is the point in which this AB is divided into 4:2 ratio. यहाँ पे 4:2 रेशियो, ये 4 पार्ट्स होगा और ये 2 पार्ट्स होगा। 4:2, ये 4 पार्ट और ये CB जो 2 पार्ट है। तो ऐसे हम लोग का कंस्ट्रक्शन होगा। And one more thing, listen, teachers, the examiner is not going to check by taking the compass या फिर your protractor scale, that should looks parallel, वो parallel दिखना चाहिए। A4C and A6B वो parallel दिखना ही चाहिए। If that is looking like parallel, then your answer will be correct. So this is the basic steps. तो construction complete हुआ। AC you can also measure and check, verify that A जो तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा कितना होना चाहिए? AC should be 8 and CB should be 4 in this case। तो 4:2 रेशियो में वो डिवाइड हो जाएंगे। ओके, इज दैट? After this construction, you have to write down the steps. Actually, in your copy, first the figure should be there, and after that, your steps of the construction should be there. I am writing here the steps. तो ये steps को याद रखना नहीं है तुम लोगों को। Whatever you have done, just you have to write those things. तो first हम क्या किए step 1 में? Construction of AB line segment. AB line segment is constructed using the length 12 centimeter। ठीक है। After this construction, what you have to do? We have to draw a ray AX. Draw a ray AX. Draw a ray AX. X की तरफ तुम्हारा एरो होना चाहिए, क्योंकि in this direction that is just going forward। Okay, draw a ray AX from the point, कौन सा पॉइंट? फ्रॉम द पॉइंट A, मेकिंग एन, कैसा एंगल फॉर्म हो रहा है? मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ AB। AB के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म करके तुम्हारा वो AX that is going forward। In the third steps, what we have done? थर्ड स्टेप में हम 5-6 पॉइंट प्लॉट किए हैं। तुम क्वेश्चन के हिसाब से जितना पॉइंट्स प्लॉट किया गया है वही लिख सकते हो। तो AX में हम 6 पॉइंट प्लॉट किए हैं इन सच ए वे दैट द लेंथ ऑफ A1, A1, A2, A2, A3 ऑल आर इक्वल। सो उसे हमें लिखना है ऑन AX रे प्लॉट 6 पॉइंट। वो पॉइंट्स का नाम क्या है? 6 पॉइंट जो हैं A1, A2 डॉट 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 A6 तक। सॉस दैट A01 इज इक्वल्स टू A1, A2 डॉट डॉट डॉट, कितना लास्ट वाला कौन है? A5, A6। ऐसा हुआ है, ठीक है। ओके, देन क्या करना है हमें? जो लास्ट पॉइंट दोनों का जो सॉम करने के बाद 6 मिला, A6, तो हमें A6 जॉइन A6 विद B, या फिर तुम लिख सकते हो कंस्ट्रक्ट A6B, नहीं तो जॉइन A6 द पॉइंट A6 विद B। हम एक A से स्टार्ट किए थे तो हमें जॉइन करना है B के साथ विथ B। तो हमें क्या मिलेगा? A6B।
A6B लाइन सेगमेंट मिल गया। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इन फिफ्थ स्टेप हम क्या करना है, हमें क्या करना है, ड्रॉ A4C पैरेलल टू A6B। तुम्हें वही लिख देने से भी हो जाएगा, ड्रॉ A4C पैरेलल टू A6B। एंड वो कैसे पैरेलल हुआ वो तुम्हें नहीं लिखने से चलेगा। एंड इफ यू वांट यू कैन राइट बाय कॉपिंग दिस एंगल, एंड these two angle will be corresponding angle if you remember that, ये दोनों corresponding है। और ड्रॉ हम नेक्स्ट क्या किया, ड्राइंग किए हैं किसका, ड्रॉ A4C पैरेलल टू A6B। कैसे किया गया है, बाय कॉपिंग, कौन सा एंगल कॉपी किया गया है, ये एंगल कॉपी किया गया है। एंड द नेम इज A6B बाय कॉपिंग A6B कौन सा जगह पे, एट A4। कॉपी हो गया, ठीक है, ये हो गया। देन ये जो नाउ दिस लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 4:2 रेशियो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के बाद आई एम राइटिंग हियर द सिक्स्थ पॉइंट इज now AC is to CB, this is AC is to CB is equals to 4:2। okay, so in this way you have to write the steps means whatever you are doing just you have to write that in terms of words, वही हैं जो तुम किए हो वही हैं। okay, so after this construction we have to go for justification। okay, so बच्चों after the steps of the construction, after first the figure will be there, after that steps will be there, after steps we have to write justification means how this is logically true, and in most of the questions ऐसा लिखा होता है justify your construction, so now you are bound to justify your construction। so यहाँ पे हम कौन कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखो इन दिस ट्राइंगल A6 and B, in the triangle A6 and B, which two lines are parallel, A4C is parallel to A6B, A4C is parallel to A6B। और ये दोनों पैरेलल कैसे हुए, दे आर पैरेलल बिकॉज ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि हम कॉन्स्ट्रक्ट किए हैं इसलिए। ये भी लिख देना क्यों पैरेलल है, बाय कॉन्स्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए दोनों पैरेलल है। एंड एज दिस टू आर पैरेलल देयर विल बी अनदर वन प्रॉपर्टी, बेसिक्स proportionality theorem by BPT, basic proportionality theorem, I am just writing the full form also, basic proportionality theorem, this is a theorem of triangle, and triangle chapter में तुम पढ़ोगे basic proportionality थ्योरम, बेसिक REM थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, बेसिकली देखो अगर एक ट्राइंगल का किसी भी एक साइड के साथ और एक लाइन हम पैरेलल करके ड्रॉ किए हैं, देन दिस लाइन डिवाइड दिस टू लाइन जो साइड ऑफ द ट्राइंगल इन सेम रेशियो। आई रिपीट द थिंग, देखो इफ one side of parallel, one side of a triangle, A6B is one side of a triangle, and we have drawn a line segment A4C which is intersecting both the side of other two side of triangle A6B। ये दोनों साइड को वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 पॉइंट A4 एंड C, ये दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये जो दोनों साइड हैं AB एंड A6 दोनों कैसे डिवाइड होंगे, प्रोपोर्शनली डिवाइड होंगे। दैट मीन्स ये तुम्हारा जो AC
डिवाइडेड बाय CB, वो किसके साथ इक्वल होना चाहिए, ये दोनों के साथ। AC किसके साथ होगा तुम्हारा, A4 एंड ये तुम्हारा CB जो है A4 A6 डिवाइडेड बाय A4 A6, ठीक है। दिस इज ड्यू टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एंड H वी नो, A4 कितना होता है, ये देखो कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट है और ये सारे इक्वल है, तो हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। A4 A6 क्या है, ये 1 पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट 2, मतलब 4/2 है। दैट मीन्स तुम्हारा A4 बाय A4 A6 4/2 है। दैट्स मीन्स AC बाय CB इज ऑल्सो, जो उसका रेशियो है दैट इज ऑल्सो 4/2। सो AC डिवाइडेड बाय CB is equals to 4/2, which means AC is to CB is equals to 4:2, which we required. This is the required one. तो हम जस्टिफिकेशन में क्या किए हैं, देखो एक ही ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ऐसे हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे हम लोगों को किसी भी लाइन सेगमेंट को ऑफ एनी गिवन लेंथ हम उसे इंटरनली हम डिवाइड कर सकते हैं इन एनी गिवन रेशियो। यहाँ पे 4:2 था, हम किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3:5 होगा तो हम 3 + 5 करेंगे, 8 करेंगे, यहाँ पे 8 पार्ट्स ले जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं 6 इक्वल पॉइंट्स में जो हम लोग किए हैं उसे हम 8 कर देंगे, तो सेम प्रोसेस होगा। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस टू डिवाइड a line segment into given ratio. There is also another one process which we will discuss in our next class. Thank you बच्चों।